السلام علیکم. امید ہے کہ دوستو آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں. تین چار چیزیں کرنی ہیں، بٹ چینل سبسکرائب کرنے والی جو بات ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپس میں بھی ضرور شیئر کریں. آپ سے جو رائے مانگی جائے اس پہ ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کریں، تاکہ اس سے ہمیں بڑی مدد ملتی ہے کہ ہم آپ کے جو کمنٹس پڑھ کر چار پانچ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو آپ سے کرنی ہے. اچھا، ایک تو لاہور میں بارش، خیر پورے پنجاب میں بارش، لاہور میں کچھ زیادہ ہی کم چک کے رکھا ہوا ہے بارش نے. عمر ایوب صاحب نے ایک نیا ہی وہ جو فوم 40 والا 47 والا جو معاملہ ہے نا، اس کو ایک نیا رخ دے دیا. تو اب یہ میرے خیال میں بحث ختم ہوگی اور اس کا حل نکل آیا کہ 47 والے کون ہیں یا 45 والے کون ہیں. اسماعیل ہانیہ صاحب کی جو شہادت ہے پورے مسلم امہ کے لیے ایک بڑا اس میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. ایران میں کیا ہوا، ایران کی سیکیورٹی کے معاملات پر بڑے سوالات ہیں. دو چار چیزیں اور اس میں سب سے کریں گے. سب سے پہلے جو اسماعیل ہانیہ صاحب ہیں انہی کے بارے میں بڑا تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو کب سیاسی زندگی شروع ہوئی، کب پھر انہوں نے حماس کے ساتھ پھر یہ پورا ان کا وہ رہا اتھارٹی کہ وزیر اعظم رہے، پھر زیادہ دیر حکومت نہ چلی. اس وقت وہ مہمان تھے، زیادہ وہ قطر میں رہے ہیں پچھلا کچھ عرصہ. تو اس وقت جو مہمان تھے، اب قطر میں اتنی دیر کے لیے ان کو کیوں ان کے ساتھ ایسی ہیپن نہیں ہوئی جو ایران میں ہوئی. یہاں پر شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں. جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کے تعلقات عرب ممالک میں بڑے اچھے ہیں، اور عربوں کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے. شاید اس قسم کی کوئی تھیوری بھی انٹرنیٹ پہ پائی جا رہی ہے. اور انہوں نے ایران کے ساتھ، کیونکہ آلریڈی ان کی کلیش چل رہی ہے، ایران نے حملہ کیا ہوا ہے، اور اس حملے کے جواب میں اس سے پہلے ایران کے جو صدر ہیں، اس سے پہلے اس کو حادثہ کرایا دیا جاتا تھا، لیکن اب بہت سارے سوالیہ نشان اس طرف بھی اٹھ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتہ یاد ہوگا کہ ان کے جنرل سلیمانی تھے، ان کی شہادت بھی جو ایران کی ہے. تو ایران کی سیکیورٹی جو ہے اس پہ پاسداران جو انقلاب ہیں ان پر بڑا زیادہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے. بہت سارے لوگوں کو اس بات سے تکلیف بھی ہو رہی ہے. بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ ان کو برا لگتا ہے جب ایران کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں، لیکن ایران کے بارے میں سوال ہوں گے، کیونکہ ایران اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ٹائم پاکستان کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ جو ایران جو ایک بالکل خاص ایک چپکلش لے کے چلتا ہے، لیکن جہاں پہ کرنے والا کام ہے وہاں پہ ایران آ کے ٹھوس ہو جاتا ہے. ایسی کیا وجہ ہے؟ لیکن خیر، خبر یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں ان کو قطر میں آخری ان کی جو رسومات ہیں وہ پوری کی جائیں گی. قطر لے کے جایا جائے گا ان کو، اور قطر میں ڈیفینیٹ جو ان کا آخری دیدار کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ ان کا آخری دیدار کیا جائے. وہ فلسطین کے ایک بہت بڑے رہنما تھے اور بہت بڑے فائٹر تھے وہ، جو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حسینیت، میں آج ٹویٹ ایک پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حضرت حسین کے بعد ان کے خاندان میں اسلام میں اتنی زیادہ قربانیاں. اب پتہ نہیں یہ مناسب ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اپنے خاندان کے 71 لوگوں کی وہ شہادت جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں اس عظیم تحریک کے لیے جو فلسطین کے حق میں چل رہی ہے. تو 71 اپنے فیملی کے، اپنے خاندان کے بچوں کی شہادتیں، یہ کوئی چھوٹی، اور یہ پیور اپنے ملک کے لیے. یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک ملک کی اپنی زمین کی جنگ ہے جس کے لیے وہ 71 سے زیادہ جانے ہیں. تو حسینیت تو زندہ ہوئی، وہ تو انہوں نے کی. اس کی مثال اب دوسرا لفظ جو بولا جا رہا ہے ایران کے بارے میں وہ یہاں پہ نہیں بولا جاتا. بہت سارے دوست جو ہیں اس پہ پھر وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن وہی رہا، وہی ہوا جو حسین کو بلا کر کیا گیا، ایسا کہا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو ایران میں یہ جو ہوا، اور اس کی آخری رسومات جو ہے وہ یہ اگر قطر میں کرنے کا فیصلہ ہے تو میرے خیال میں اس لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پر ان کی اگر آخری رسومات پوری کی جاتی ہیں تو بہت سارے دوسرے ممالک کے سربراہان یا بہت سارے جو ان کے بارے میں اپنا رویہ اچھا رکھتے ہیں، جو پاکستان سے خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی بڑی اچھی دوستی تھی، تو وہ لوگ بھی جا کر ان کا آخری دیدار کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ بہت مناسب ہے. لیکن ملا جلا رد عمل ہے. اس پہ بہت ساری دوسری ایسی باتیں ہیں جو کہ متنازع بھی ہیں، غیر متنازع بھی ہیں. کل جو میں نے ٹویٹ کی تھی اس میں بھی کافی زیادہ لوگوں کو وہ پریشانی ہوئی کہ یہ بات کیسے کر دیا آپ نے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ میرا یہ خیال ہے، میرا یہ اندازہ ہے، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے. میں صرف یہ
सोच रहा हूँ कि शहबाज साहब क्यों नहीं गए, और अगर नहीं गए तो क्या वजह है। और फिर दूसरी ये बात है कि इस खित्ते में नहीं, पूरी दुनिया में हमारी जो एजेंसियाँ हैं वो टॉप की हैसियत रखती हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन एजेंसियां हमारी जो हैं वो वर्ल्ड में उनका नाम है, और आज से नहीं है, 70 की दहाई से नाम है। तो जो इलाके में गड़बड़ेशन हो रही होती है, सैटेलाइट पे जो नकलो हरकत हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो उससे कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले से पता चलती हैं, लेकिन इतनी परफेक्ट पता नहीं चलती कि आपको पता हो कि कब कौन कहाँ, लेकिन हो रहा होता है कि कुछ ना कुछ हो जा रहा है। और फिर जब इतनी अहम मूवमेंट होती है जहाँ पर एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त हाईलाइटेड है, एक ऐसे मुल्क के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, उनका झगड़ा चल रहा है, तो फिर वहाँ पर इस किस्म की चीज़ों, तो ये मेरे एक अंदाज़ा था जिसको सोशल मीडिया पर कल बड़े बड़े जो पीटीआई के अकाउंट्स हैं उन्होंने उसको स्क्रीनशॉट लेकर और उनको ट्वीट किया। उनकी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने खबर नहीं दी थी, मैंने कोई सोर्स नहीं कहा था, मेरा ये अंदाज़ा था कि इस तरह हो सकता है कि पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उन्होंने मतलब कि ये किया, और अगर ऐसा है उन्होंने अपने विजन को रोका है तो बिल्कुल वो अप्रिशिएट के काबिल है। और आज से नहीं, 70-80 की दहाई से आप देख लें सोवियत यूनियन जंग में हमारी एजेंसियों का क्या रोल था, आज भी हमारी एजेंसियों का क्या रोल है। हाँ, वो कौम यूथ वाले अगर वो क्रेडिट ना देना चाहें, इस चीज़ को ना मानना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान का दौर होता, जैसे इमरान खान के दौर में सिपा सलार दुनिया का बेहतरीन सिपा सलार था, फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज थी, एजेंसियां हमारी टॉप की थी, क्योंकि दौर इमरान खान का था। और अब इमरान खान का दौर नहीं है तो इन चीज़ों की अहमियत नहीं है, ये यूथियों को ज़रा पता होता है। बारिश ने लाहौर में बड़ा बुरा हाल किया है, ये कहा जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि 74 साल से जो बारिश है उसने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, कि 44 साल, 44 ईयर बिफोर इससे ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन वो जो बारिश थी उस का भी रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ दिया है। तो जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई 44 साल पहले, इस वक्त जो लाहौर में बारिश है उसमें हमारे जितने दोस्त हैं उनसे कोई रब्ता नहीं है, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब से उनसे भी कोई रब्ता नहीं है, उनका भी मोबाइल ऑफ जा रहा है। और ज़ाहिर है मोबाइल इसलिए ऑफ जा रहा है कि वहाँ पे बिजली के प्रॉब्लम भी होंगे। लेकिन एक बात जहन में रखनी चाहिए, उस्मान बुज़दार नहीं, यहाँ पे मरीम नवाज़ साहब है, पहले से उन्होंने अपने इंतज़ामिया को चौको चबंद किया हुआ है। 44 साल वाली बारिश का पानी अगर 24 घंटों से पहले पहले लाहौर से निकाल दिया जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो जाएगी। हो सकता है कुछ इलाकों में कुछ और घंटे भी लग जाए, मज़ीद एक आध दिन भी लग जाए, लेकिन ये जो लाहौर के मेन इलाके हैं, मैं अभी मेरे जो दोस्त हैं जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं वहाँ पर हुकूमत के साथ, वो तस्वीरें भेज रहे हैं, वो पोस्टें लगा रहे हैं, भेज रहे हैं कि बहुत सारे इलाकों में मतलब अस्पताल जो है, जो सुबह अस्पताल की तस्वीरें आ रही थी उसमें पानी था, लेकिन जो अब आ रही हैं उसमें पानी क्लियर हो चुका है और हॉस्पिटल वर्किंग पोजीशन में आ गए हैं। तो अगर चंद घंटों के अंदर अंदर पंजाब हुकूमत ने पानी निकाल कर वो ऐसे हॉस्पिटल या ऐसी जगह वहाँ पे काम शुरू हो गया, तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी पॉजिटिव है। अगर उस्मान बुज़दार होते तो वो तो शायद अभी तक मिल ना रहे होते। ये तो मरीम नवाज़ है कि उन्होंने पहले से अपनी टीम को, वासा को हाई अलर्ट किया हुआ है कि बारिश को हर सूरत में हमने हैंडल करना है। लेकिन 44 साल की बारिश को हैंडल करना भी तो इतना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मरीम नवाज़ की टीम जिस तरह लगी हुई है, लाहौर के पूरी की पूरी जो इंतज़ामिया है वासा की, उस वक्त रोडों पे है, काम कर रहे हैं। उनका कोई एक वर्कर जो है वो बिल्कुल, बल्कि एक्स्ट्रा लोग जो है वो काम कर रहे हैं, और मरीम नवाज़ खुद इसकी निगरानी कर रही हैं। और आपको ये बात बता दूं मैं, ये बारिश अगर 44 साल का रिकॉर्ड टूटा है तो मरीम नवाज़ पानी लाहौर से निकालने का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ेंगे। ये कोई 2 दिन या 4 दिन या 6 दिन का काम नहीं होगा, ये कुछ घंटों में आप देखेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अगर करम रहे, अगर बारिश एक दफ़ा हुई है और इसके दरमियान में कोई फासला आता है एक आध दिन का, तो पहले वाला बारिश का पानी जो है आपको नज़र नहीं आएगा। ये उस्मान बुज़दार नहीं है, इमरान खान वो याद है आप कहा करता था कि ये उस्मान बुज़दार ने ज़ेर ज़मीन टैंक बनाए हुए हैं। वो तो ज़ेर ज़मीन कौन से टैंक बनाए हुए हैं कि बारिश का जितना पानी आएगा वो ज़ेर ज़मीन टैंकों में चला जाएगा। ये बारिश का पानी आपने निकालना है, इधर यार रावी में ही जाना है, और कहाँ जाना है इसने। मरीम नवाज़ और उनकी टीम जो है वो बिल्कुल दाद के मुस्तहिक है, ऑलवेज़ हर वक्त काम पे। तो इस वक्त भी बहुत सारी मीम्स भी बन रही हैं। ज़ाहिर है जब आप फ्रंट फुट पे खेलेंगे, फ्रंट फुट पे काम करेंगे और वो लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो जो आपके जो मुखालफिन होंगे वो उसको तनकीद का निशाना भी बनाएंगे। लेकिन ये तनकीद जो होती है ये आपको और हिम्मत और हौसला देती है। तो मरीम नवाज़ की टीम पर अगर तनकीद हो रही है सोशल मीडिया, पीटीआई की तरफ से, आवाम की तरफ से तो अप्रिसिएशन ही है, तो उनकी तरफ से हो रही है, तो ये मेरे ख्याल में उनकी टीम को और हिम्मत और हौसला देता है, क्योंकि तनकीद करने वालों को सिर्फ तनकीद नज़र आती है। एक चीज़ और जो आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वक्त जो भी जिस टीवी टॉक शो में जहाँ भी जाएं एक ही चीज़ नज़र आती है, वो है फॉर्म 47 वाली हुकूमत या फॉर्म 45 वाली हुकूमत।
अपोजिशन लीडर जो हैं उमर अयूब साहब, उनके हलके में बाबर नवाज साहब PMLN के गालबन नाम है उनका, वो भी चले गए इलेक्शन कमीशन में जी। उन्होंने जाके कर दिया जी कि जहाँ पर जो उमर अयूब साहब है इनको कोई 80,000 के करीब वोट जेली पड़ा है। और जेली क्यों पड़ा है वोट, उसकी रीज़न है बहुत बड़ी, क्योंकि 10 साल से 12 साल से हुकूमत है इमरान खान साहब की। और हम आपको बता चुके हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हलके में भी, क्योंकि वहाँ पर भी हलका नहीं खोला जा रहा, वहाँ पर भी कुछ इसी किस्म का काम हुआ है। और यहाँ पे उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर है, उनके हलके में भी 80,000 वोट पड़ा है। होना तो ये चाहिए था कि उमर अयूब साहब को मिसाल बनना चाहिए था, कहना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को जी फ़ौरन मेरा हलका खोले, ये मुझ पे जो इल्ज़ाम लग रहा है इसको क्लियर करें। क्योंकि उमर अयूब साहब सुबह से लेकर शाम तक हुकूमत पे यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी हुकूमत फॉर्म 47 पर है और उनकी 180 सीटों को 80 सीटों में तब्दील किया गया है। तो और वो जनाब ये सारी सीटें वापस चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब उन पर ये सवालिया निशान उठा तो वो सीधे चले गए हाई कोर्ट में और जाके उन्होंने ले लिया स्टे। अब कासम सूरी की तरह, जिस तरह स्पीकर कासम सूरी का लंबा स्टे चला था, इसी तरह उमर अयूब साहब की लंबा स्टे चलेगा। तो मेरे ख्याल में ये एक मिसाल कायम कर दी गई है, जो आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो बाद में आप चाटते हैं, ये कहा जाता है। तो उमर अयूब साहब अपनी पार्टी की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके मुखालफिन जो हैं वो गलत वोट लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ पर जब उन पर ये इल्ज़ाम लगा तो क्या होना चाहिए था, मिसाल बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, मिसाल नहीं बने। उन्होंने मिसाल कायम कर दी। उन्होंने कहा जी कि जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कोई फॉर्म 47 वाला कहे तो आप वही करें जो असद उमर ने किया। असद उमर ने क्या किया है, असद उमर ने जाकर स्टे ले लिया है। अब मेरे ख्याल में PMLN के लिए या MKM के लिए या काफ लीग के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए, सबके लिए आसानी पैदा हो गई है। मिसाल बनाना चाहिए असद उमर के इस काम को। जो भी फॉर्म 47 वाला कहे जी, पहले असद उमर से कहें वो जो उन्होंने स्टे लिया वापस करें, उनके हल्के में गिनती होगी तो उसके बाद फिर आप हमारी तरफ आएँ, हम भी वही मिसाइल कायम करेंगे। बारिश के पानी के बारे में लाहौरिये क्या बताते हैं, लाहौर में रहने वाले या सुनने वाले या जिन लोगों के पास इतला है कि लाहौर में कितनी बारिश हुई है और लाहौर में बारिश का पानी निकालने के लिए वज़ीर आला पंजाब की टीम क्या कर रही है, इस पर ज़रूर राय का इजहार करें। ईरान वाला वाक़या है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, आप उस पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से अगले वीडियो में बात होगी। खुदा हाफिज़।